हेलो एंड वेलकम बैक टू योर्स इंग्लिश वर्ल्ड, जहां हम सीखेंगे इंग्लिश हर तरह से. आई एम नेहा. In the previous class, we all have discussed about some of the common abbreviations that we discuss in our day-to-day life. हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे प्रेजेंट जनरेशन में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके शॉर्ट फॉर्म को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. एंड इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस द सेम. पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ वैसे ही अबाउट 15 वर्ड्स एक्सप्लेन करके बताया था जिनके शॉर्ट फॉर्म्स जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में. So I hope you all have gone through those words and they must be very useful in your day-to-day life also. And today we are again going to discuss some more similar words, or we can say some more common abbreviations which will also be very much useful in your day-to-day life. Let's begin the class. But before beginning the class, don't forget to like and subscribe my channel if you want to see such videos again, and be till the end of the video, and if you like the video then only subscribe and like my channel. So let's begin the class. So today we will discuss such more 15 words of common abbreviations that we use in our day-to-day life. So let's start. The first one is CWOT. What does this stand for? What does this stand for? CWOT. It stands for complete. It stands for complete waste of time. What does it stands for? Complete waste of time. So now where do we use it? सपोज जब हम किसी से बातें कर रहे होते हैं या कुछ काम कर रहे होते हैं और सडनली व्हाट हैपेंस, योर कंप्यूटर शट डाउन्स, या कुछ वैसे वायरस आ जाते हैं जिससे आपके जो डॉक्स होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो किसी तरह बहुत ही ज़्यादा वैनिश हो जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है उसमें. सो दैट टाइम टू आवर कलीग्स और इवन टू माई सेल्फ, कभी कभी हम खुद से भी बातें किया करते हैं, तो उस वक्त हम अपने आप को ऐसा फील कराते हैं कि मैंने जो भी अभी किया ना वो पूरी तरह से वेस्ट ऑफ टाइम था. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग सच बिग लाइन्स या एक्सप्लेनिंग थ्रू सच अ बिग लाइन, वी कैन सिंपली से CWOT. दैट विल मीन द सेम, कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम. So from the next time when you will get any of your work, disappointment with any of your work, then you can, instead of using a big line, you can use simply CWOT, which will give you the meaning, or the other one the meaning, complete waste of time. Now let's see the second word, BRB. It is also one of the most common acronym, most common abbreviation that we use in our day-to-day life during WhatsApp chats, during calling, or during with our talk with colleagues, anywhere. So what does BRB stands for? BRB stands for be right back. Be right back means तुरंत वापस आता हूँ. इन हिंदी भी से तुरंत वापस अभी आता हूँ. हिंदी में हम कहते हैं ना कि बस अभी गया और आया, अभी आता हूँ. तो सेम मीनिंग इज इन इंग्लिश बी राइट बैक. जब कोई किसी को बोलता है बी राइट बैक, विल बी राइट बैक, विल BRB, तब हम बोल सकते हैं विल BRB, हम तुरंत अभी गए और आए. इफ समवन सेज यू जस्ट बी राइट बैक, अभी आओ, then we will say BRB. That person will use an acronym that is BRB. कभी suppose there's your boss who just texted you, yeah, who wants you to come back immediately, then he will just text you BRB, be right back. Let's see the third word, cause. I think most of you know the exact acronym of this word, because
हमारे व्हाट्सएप चैट्स में, हमारे फेसबुक में, हमारे इंस्टा में जब भी हम बात करते हैं तो ये एक इतना कॉमन सा एक्रोनिम है जो हम हर वक्त अपने चैट्स में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने कजिन्स के साथ ये वर्ड को यूज करते हैं. सो व्हाट डज CUZ स्टैंड्स फॉर? इट स्टैंड्स फॉर बिकॉज. सच ए सिंपल and decent word, because. I think everyone knows CUZ means because. जब भी हम बोलते हैं, किसी को रीजन देते हैं, it was raining because sorry, just a second. The weather is cold because it was raining. या the weather is cold because it is winter. मतलब जब भी आप दो सेंटेंस को मिलाओगे और जिस चीज़ के बारे बता रहे हो, जिस चीज़ के कारण हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं जोड़ने के लिए? बिकॉज. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी ना दैट वाइल टेक्सटिंग वी विल यूज द फुल वर्ड विथ फुल स्पेलिंग्स. टाइम भी तो कम होता है हमारे पास. We need to even save the time now. So instead of spelling it out BECAUSE, we just spell it out as CUZ, and that will give you the same meaning as it is of because. Now let's see the next fourth word, FAQ. Now what does FAQ stands for? Those students who are fighting for competitive exams or fighting for any other UPSC, BPSC, या फिर कोई इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको कुछ 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं. तो जब आप उसकी प्रिपरेशन करते हो ना किसी इंस्टीट्यूट से या किसी कॉमनली कहीं कोचिंग सेंटर्स से या इवन इन योर स्कूल्स, तो आपको लोग, आपके टीचर्स आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, एक नोट प्रोवाइड करते हैं और उस नोट के ऊपर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं. जब हम छोटे थे तो वी यूज टू आस्क आवर टीचर्स ना कि मैम कैन यू गिव मी सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट चैप्टर, ये हम कहते थे. तो अब क्या हो गया है ना, अब लोग बोलते हैं कि मैम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नेक्स्ट ईयर में मैच करते हैं. तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो लगातार हर साल मोस्ट ऑफ द टाइम आता है? मीन्स वी कैन से दैट देयर आर सम क्वेश्चंस दैट आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड. सो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड मतलब लगभग तोड़ मड़ोड़ के, ट्विस्ट एंड टर्न करके वो क्वेश्चंस किसी ना किसी तरह रिपीट किए जाते हैं. सपोज व्हेन वी वर इन स्टैंडर्ड 7 और 8, तो हमारा पॉल्यूशन EVS का एक चैप्टर था. तो जब पॉल्यूशन चैप्टर था ना, तो हर बार पॉल्यूशन रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही था इन लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस, जिसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहते थे. और वो क्वेश्चन क्या रहता था? डिफाइन पॉल्यूशन, एक्सप्लेन सॉइल पॉल्यूशन थॉरोली. मतलब पहले पॉल्यूशन को डिफाइन करो, फिर सॉइल पॉल्यूशन को इलेबोरेट करो. अगेन नेक्स्ट ईयर, व्हाट डू यू मीन बाय पॉल्यूशन? इलेबोरेट नॉइज पॉल्यूशन. अगेन नेक्स्ट ईयर, व्हाट डज पॉल्यूशन मीन्स? इलेबोरेट एयर पॉल्यूशन, या फिर अगेन सॉइल पॉल्यूशन. तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ट्विस्ट एंड टर्न करके थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के बदल दिए जाते हैं, बट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं. सो सेम थिंग हियर, FAQ स्टैंड्स फॉर frequently asked questions. Frequently asked questions. ठीक है. तो जब कोई बच्चे अपने टीचर से नाउअडेज पूछते हैं या अपने किसी फ्रेंड से चैट करते वक्त कुछ एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो दे इवन टेक्स्ट या दे इवन आस्क कैन यू गिव मी सम ऑफ द फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और कैन यू मेंशन मी सम FAQ. इट विल बी वेरी सिंपल. बहुत ही सिंपल से आप किसी को टेक्स्ट कर सकते हो या आप किसी को बोल सकते हो प्रोवाइड मी सम FAQ, प्रोवाइड मी सम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. सो इट विल साउंड वेरी सिंपल और सामने वाला जो है वो आपकी बातों को समझ भी जाएगा. सो इट इज़ अ वेरी यूजफुल acronym. Now see the next one, IIRC. What does IIRC stands for? IRC stands for if I remember correctly. What does it stands for? If
I remember correctly. अगर शायद मुझे ये याद है या शायद मुझे ये याद है। हम हिंदी में ना अक्सर क्या होता है कि जब देखना क्या होता है ना, जब पेरेंट्स बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मम्मियाँ जब बात करती हैं ना, तो वो अक्सर किसी को देख करके, तुम्हारे फ्रेंड्स को देख करके ऐसे रिप्लाई करती हैं कि अगर मुझे सही सही याद है तो मैंने तो इसे कहीं देखा है। शी साउंड्स वेरी सस्पिशियस, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेंज साउंड करेंगी, सस्पिशियस साउंड करेंगी, पर उन्हें पता सब होगा। शी वॉन्ट्स कि आप वो सारी बातें बोल दो। द सेम थिंग हैपन्स विद फ्रेंड्स, विद बॉस, विद कलीग्स, कि अगर आपसे रिलेटेड उन्हें कोई बात देख के लगे कि हाँ शायद मुझे अगर अच्छी तरह से याद है तो ये मैंने पहले कभी देखा है। सो इन इंग्लिश वी से दैट इफ आई रिमेंबर करेक्टली, अगर मुझे अच्छी तरह से याद है तो। सो इन दिस इज अ क्वाइट लॉन्ग एक्रोनिम। सो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम इतने लंबे एक्रोनिम को हमारे लिए यूज़ करें। सो इन शॉर्ट वी कैन जस्ट से IIRC. We can either text or we can just say it out. एक्चुअली ये ज़्यादातर जब आप टेक्स्ट करते हो, व्हाट्सएप करते हो, तो ये बोलने में ज़्यादा ईजी पड़ता है। बट इवन जब आप बोलना चाहते हो, जब आप किसी से कन्वर्सेशन करना चाहते हो और सामने वाला इज़ गुड इन फ्लुएंसी विथ इंग्लिश, तो ही विल क्लियरली अंडरस्टैंड योर एक्रोनिम, द मीनिंग ऑफ योर एक्रोनिम. ओके, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज IMO. This is one of the most common acronym you have come across, which means in my opinion, मेरे हिसाब से. क्या बोलते हैं हम हिंदी में से? मेरे हिसाब से. जब भी हम किसी को जज करते हैं, जब भी हम किसी को कुछ बोलते हैं, तो होता है ना कि कोई आपसे सजेशन मांग रहा है कि सपोज माय फ्रेंड आस्क मी कि नेहा व्हाट डू यू थिंक दिस टाइम वेयर शुड आई गो टू फॉर माई हॉलीडेज, मतलब कि मुझे इस बार हॉलीडेज पे कहाँ जाना चाहिए. तो व्हाट डू आई से, मैं ये नहीं कहूँगी उसे कि जस्ट गो फॉर शिमला, जस्ट गो टू मनाली. मैं ये कहूँगी मेरे हिसाब से, according to me, in my opinion, you should visit Shimla, you should go Darjeeling. मतलब कोई एक रैंडम सा जवाब देता है ना, या कोई आपसे सजेशन पूछता है, तो देखो सामने वाला का मोटिव रहता है आपकी राय जानना कि आप क्या सोच रहे हो, आपके हिसाब से क्या सही. तो आप भी तो उसे ये बताओगे ना कि आप उस पर बॉसी नहीं हो रहे हो, आप उसे एक क्या बोलते हैं वो ऑर्डर नहीं दे रहे हो कि तुम वहीं जाओ, बल्कि वो आपसे सजेशन मांग रहा है, तो आप उसे सजेस्ट कर रहे हो, उसे बता रहे हो कि अगर तुम पूछ रहे हो कि तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए, तो हाँ ठीक है, मेरे हिसाब से ये करना चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी. सो इन इंग्लिश व्हेन समवन आस्क यू व्हाट इज योर ओपिनियन, तो इन रिप्लाई यू मोस्ट ऑफ द टाइम से इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन यू शुड go Shimla. In my opinion, you must visit your parents this year. तो जब उसे शॉर्ट फॉर्म में बोलना होगा, जब उसके एक्रोनिम बोलनी होगी, तो व्हाट विल वी से? IMO. IMO. मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसा एक्रोनिम है ना जो काफ़ी लोग यूज़ भी करते हैं और बातचीत के दौरान, और जो बेसिक जिनको इंग्लिश पता है वो भी इसका एक्रोनिम की मीनिंग जानते हैं. सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज ASAP. अब नाउ लेट्स सी दिस वर्ड, व्हाट ASAP, ASAP. अब क्या है ना, ये थोड़ा सा लॉन्ग एक्रोनिम है, ठीक है, और ऐसा एक्रोनिम है जो हम जब बातचीत करते हैं या बोलते हैं तो उस वक्त बोलने में भी इट साउंड्स वेरी क्लियर एंड वेरी डिसेंट. ऐसा नहीं है, ये सब क्या है? IMO, IIRC. जब हम बोलते हैं तो सामने वाला बोलता है तो मे भी हमें थोड़ा अटपटा सा लगेगा सुनने में कि यार क्यों ये फुल फॉर्म नहीं बोल सकता है. ठीक है ना, ही डजंट वांट टू वेस्ट टाइम, तो वो बोल रहा है, लेकिन आपको तो मीनिंग पता होनी चाहिए ना. अगर मान लो सामने वाला अपने आप को थोड़ा, मे बी लोगों को लगता है कि वो एडवांस शो कर रहा है, तो ठीक है, वो एडवांस शो कर रहा है अपने आप को, उसे पता है, उस चीज़ की नॉलेज है, तो आप ये क्यों बोलोगे और कब बोलोगे? जब आपको भी उस चीज़ की बातें पता हो, उस चीज़ का मीनिंग पता हो. सपोज सम ऑफ योर कलीग्स इसमें से ही कोई एक वर्ड ऐसा यूज़ कर दे, कोई एक ऐसा एक्रोनिम यूज़ कर दे वाइल कन्वर्सेशन, और आपको उसकी मीनिंग नहीं पता हो, तो फिर आप ये नहीं बोल सकते हो ना कि वो बहुत एडवांस में है, क्योंकि आपको खुद उसकी मीनिंग नहीं पता है. आप एक अच्छे पोस्ट पे हो, एक अच्छे क्या बोलते हैं डिवीजन पे, वहाँ पे जॉब कर रहे हो, और आपको एक छोटे से एक्रोनिम नहीं पता जो आपके कलीग को पता है. इट विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटमेंट फॉर यू.
वेरी एम्बैरेसिंग। तो इसीलिए कोशिश करो कि जो बेसिक चीज़ें हैं इंग्लिश की कम से कम वो जान सको। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, कम से कम एम्बैरेसमेंट से तो बचोगे। तो सेम थिंग इज एसेप्ट। एसेप्ट का मतलब क्या होता है, जो कि आपके मोस्ट ऑफ द रिलेटिव्स, कॉमनली नोन पीपल यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, जितनी जल्दी हो सके। सपोज एनी योर पेरेंट सेज, योर बॉस सेज आई वॉन्ट दैट फाइल टुमारो या बाय टुमारो, अदरवाइज आई विल फायर यू। कल तक मुझे वो फाइल चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, सर आई विल ट्राई टू गिव इट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। आपको थोड़ा हेक्टिक लगेगा वो काम, बट आप क्या बोलोगे कि आई विल ट्राई टू गिव दैट एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं दूंगा। नौकरी जाने की डर तो हर किसी को रहती है। तो सेम थिंग वहाँ पे हुआ। अगर कोई फ्रेंड है आपका वेट कर रहा है, सेज कि आई जस्ट वॉन्ट टू मीट यू, कम सून, तो आप क्या बोलोगे? आपको लगेगा कि वो किसी टेंशन में है, किसी वरी में, तो आप क्या रिप्लाई करोगे? श्योर, एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके मैं अभी तुरंत आपके पास, तुम्हारे पास पहुंचता हूं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी ना कि अगर लोग हड़बड़ में हैं तो आप इतना लंबा सेंटेंस यूज करो या इतना लंबा सेंटेंस आप वहां पे टेक्स्ट करो। यू कैन जस्ट कीप इट सिंपल, एक्सेप्ट। लाइफ इज वेरी सिंपल। जितना सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा सामने वाला आपको तुल देगा, वैल्यू देगा। ठीक है, तो जस्ट कीप एवरीथिंग क्वाइट सिंपल। अब सपोज क्या होता है ना, जो लोग इंग्लिश, देखो क्या, हम एक बात बताते हैं आज। लोग ना बचपन में जब हम छोटे थे तो जब कोई बाहर से आता था ना, तो हमारे पेरेंट्स आर वेरी मतलब काइंड हार्टेड। उन्हें ना अपने बच्चों से अलग ही लेवल का लगाव रहता है। उन्हें ऐसा कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि अरे मेरे बच्चों जैसा तो कोई भी नहीं है। तो क्या होता था ना, बचपन में जब भी कोई मेरे घर पे आता था तो माय फादर यूज्ड टू टेल मी कि बेटा इंग्लिश में बात करके दिखाओ। मेरी बेटी को इंग्लिश बड़ा अच्छा आता है। और ही यूज्ड टू फील सम काइंड ऑफ प्राउडनेस। और मुझे लगता था बचपन में कि अगर मैंने 10 सेंटेंस इंग्लिश में बोल दिया, पापा तो बड़ा खुश हो गए, केक वेक खिला दिया हमें। तो जब धीरे धीरे बड़े होने लगी, और इवन द रिलेटिव्स यूज्ड टू, मतलब खुश हो जाते थे वो लोग। दे यूज्ड टू से मी कि वाह आपकी बेटी तो बड़ा अच्छा इंग्लिश बोलती है। पर क्या हुआ ना, बचपन में ये सारी चीज़ें अच्छी लगती थी, पर जैसे जैसे हम बड़े हुए तो ये जो बोस्टिंग का काम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अटपटा लगने लगा। अभी अगर कोई आदमी सामने से आकर के बहुत ज़्यादा आपको रिलक्टेंटली, फ्लुएंटली, एकदम जो मन सो इंग्लिश में बोल दे, समहाउ यू विल सी ऑन एफबीज ना कि कुछ लोग लगातार इंग्लिश में बस कमेंट किए जाते हैं। वहाँ ऐसा लगता है ना कि वो ये नहीं दिखा रहे कि क्या मतलब है उस चीज़ का या क्या वो बोलना चाह रहे हैं। ऐसा लगता है वो ये बताना चाह रहे हैं कि मुझे इंग्लिश आती है, तुम्हें नहीं आती है। और फिर वही जो सामने वाला जो अभी तक हिंदी में रिप्लाई कर रहा होता है, ही फील समहाउ हर्टेड, किसी तरह से मतलब एम्बैरेसमेंट लगता है। और फिर सडनली वो क्या करता है, वो भी इंग्लिश में रिप्लाई करने लगता है, आता हो नहीं आता हो, सामने वाले से पूछ के किसी भी तरह से, बट वो करने लगता है। तो मतलब इंग्लिश कुछ ऐसा हो गया है ना कि जोर जबरदस्ती वाला हो गया हमारे सोसाइटी में। तो इसीलिए बचपन में ये सब जो हुआ, अच्छा लगना, बोलना, मुझे आज पता चला कि जो लोग सच में इंग्लिश जानते हैं ना, दे नॉट ओनली टॉक इन इंग्लिश कंटिन्यूसली। वो ऐसा नहीं है कि लगातार एक सांस में सिर्फ इंग्लिश बोलते रहेंगे तभी इंग्लिश आती है। उन्हें इंग्लिश आती है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके एसेंट से पता चलता है। जब आप बोलते हो ना तब पता चल जाती है कि आपको इंग्लिश आती है। अब आप 10 लाइन रट लोगे और वही हर वक्त बोलते रहोगे तो वो इंग्लिश नहीं होती है, वो रट्टा होता है, वो रट्टा मारना होता है। हाँ, हमें इंग्लिश आती है, और भी लोग हैं जिन्हें इंग्लिश आती है। इवन आप कितने सारे यूट्यूबर्स को देखोगे, मोटिवेटर्स को देखोगे, तो क्या देखते हो, उन्हें इंग्लिश नहीं आती। शाहरुख खान को इंग्लिश नहीं आती, अमिताभ बच्चन को इंग्लिश नहीं आती, अरे सबको आती है इंग्लिश। इवन द कॉमन यूट्यूबर्स जो अभी छाए हुए हैं, टिकटॉकर्स वगैरह जो भी, सबको इंग्लिश आती है। लेकिन क्या वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ इंग्लिश में बातें करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें अपने फैन फॉलोइंग बढ़ानी है, उन्हें सामने वाले को अपने चीज़ों को समझाना है। तो अगर मैं इंग्लिश में बोलते रह जाऊंगी और सामने वाले को आता ही नहीं, तो वो समझेगा क्या? मुझे इंग्लिश आती है पर मैं तो यहाँ इंग्लिश पढ़ाने आई हूँ। अगर मैं इंग्लिश में ही सब कुछ बोलते चल जाऊंगी तो आप सीखोगे क्या?
आप जानोगे क्या? सपोज आई विल स्टार्ट द सेशन विद दिस दैट today I am going to discuss some common abbreviations. These are the words. CWOT stands for complete waste of time, which means that we should not waste. देखो ये क्या हुआ, ये मैं so when I will speak in such a fluent English and in such a rapid English, you will not be unable to understand. आप समझ नहीं पाओगे कि आखिर मैंने क्या समझाया. तो इतना फास्ट बोलने से अच्छा है कि मैं आपको सिंपली जिस लैंग्वेज में सामने वाला समझ सके उसमें समझाऊं. सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, लेट्स डिस्कस सम मोर वर्ड्स. सो हियर इज द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज BBQ. What does BBQ stands for? कुछ लोग होंगे जिन्हें खाने का शौक होगा, मे बी इंटरेस्टेड इन फूड, तो वो लोग जानते होंगे कि BBQ क्या होता है. BBQ का मतलब होता है बारबेक्यू. What does it stands for? बारबेक्यू. जब भी हम किसी रेस्टोरेंट जाते हैं या कोई वैसा जगह जाते हैं जहाँ पे बारबेक्यू चल रहा होता है, तो ये इट्स अ काइंड ऑफ फूड सर्व्ड. वो मतलब कि काफ़ी लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग बारबेक्यू कंप्लीटली, इवन द ओनर्स राइट BBQ. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, PIN. पिन. हर सिटी का, हर शहर का एक पिन कोड होता है. सब कोई जानते हैं वो पिन कोड क्या होता है अपने अपने शहर का. बट डू यू नो व्हाट डज पिन स्टैंड्स फॉर? सो हियर इट इज, पिन स्टैंड्स फॉर पर्सनल आइडेंटिटी नंबर. व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर? पर्सनल आइडेंटिटी नंबर. तो जब भी अब नेक्स्ट टाइम से कोई आपको पिन कोड पूछे तो कोशिश करना कि उसे पिन का भी फुल फॉर्म बता सको. पहले पूछ लेना कि उसे पिन का फुल फॉर्म पता हो या नहीं, और अगर नहीं पता हो तो मेक श्योर कि आप उसे पिन का फुल फॉर्म बता दो. सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, NGO. आई थिंक दिस इज द वर्ड जो हर बच्चा जानता है, हर बड़े लोग जानते हैं. जब हम छोटे थे, जब हम क्लासेस में 9 to 12 में पढ़ते थे, तो हमें बहुत सारे NGO के फुल फॉर्म्स पढ़ाए जाते थे. बहुत सारी ऐसी वर्ड्स होती थी जो हमें बताई जाती थी कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे हैं रिलेटेड टू गर्ल्स, और जो भी है अभी गवर्नमेंट हमारे कौन कौन से NGOs चला रहे हैं, और भी बड़े बड़े लोग हैं जो NGOs से जुड़े हुए हैं, जो NGOs को चला रहे हैं. सो हियर इट इज़, व्हाट डज NGO स्टैंड्स फॉर? इट स्टैंड्स फॉर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें सारे लोग चलाते हैं, ना कि गवर्नमेंट. तो कुछ NGOs ऐसी होती हैं जो जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो कुछ NGOs चलाते हैं उन विकलांग बच्चों के लिए या डिजेबल्ड के लिए, गर्ल्स के लिए, ऑर्फन्स के लिए. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो NGOs को चलाते हैं. तो इन स्पाइट ऑफ सेइंग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन जस्ट से NGO. Now let's see the next word, that is RIP. It stands for rest in peace. ये एक ऐसा वर्ड है ना जो इस साल हर कोई जानता होगा. ठीक है, हर कोई, मतलब ये साल ही शायद इस वर्ड के लिए है. फॉर एवरी नेशन, फॉर आवर कंट्री. कितने लोगों को खोया है हमारे देश ने, और कितने बड़ी बड़ी हस्तियां चली गई. सो दिस वर्ड RIP इज मेंट फॉर दिस ईयर रिस्पेक्टिवली. तो जब हम RIP की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है रेस्ट इन पीस. व्हेन समवन डाइज, व्हेन देयर इज अ डेथ टेकन प्लेस, तो उसके कंडोलेंसेस में हम क्या कहते हैं? RIP, रेस्ट इन पीस. और यही एक ऐसा वर्ड है जिसके एक्रोनिम को उस कंप्लीट फुल फॉर्म से ज़्यादा यूज़ किया जाता है. जब भी आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे किसी के डेथ न्यूज़ सुनते हो ना, तो कमेंट्स में सारे लोग वहाँ पे फुल फॉर्म में रेस्ट इन पीस बहुत कम लोग लिखते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? RIP. So this is the most commonly acronym used by everyone of this generation or by the people.
Let's discuss the next word. MNC. MNC तो I hope everyone knows, no need to discuss about it. But फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, MNC stands for मल्टी नेशनल कंपनी या कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी जो एमएनसीज होती हैं, जहाँ पे लोग बोलते हैं ओह ही वर्क्स इन एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में बात करता है। तो ज़्यादातर लोग ये नहीं बोलते कि ही वर्क्स इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ा भारी भरकम सा वर्ड लगता है, तो शॉर्ट फॉर्म में लोग बोलते हैं ही वर्क्स इन अ एमएनसी, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, NOYB, most liked acronym by me, which stands for none of your business. अभी कुछ ही दिनों पहले एक वायरल हुआ था ना कुछ यूट्यूब पे, माई बिजनेस इज माई बिजनेस, योर बिजनेस इज योर बिजनेस करके कुछ इस तरह से, माई बिजनेस इज माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस, पता नहीं क्या था, कुछ ऐसे ही था। लेकिन तो ये वही है, NOYB, नन ऑफ योर बिजनेस। सपोज कुछ लोग होते हैं हमारे लाइफ में ऐसे ना, जो ज़बरदस्ती घुसते हैं ज़िंदगी में, आप नहीं चाहोगे फिर भी घुसेंगे वो आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो सपोज देर इज़ अ पर्सन हु वांट्स टू नो मोर अबाउट योर पर्सनल लाइफ। अरे बताओ ना क्या हुआ, बताओ ना व्हाट डिड यू एट लास्ट नाइट, बताओ ना डिड यू टुक बाथ लास्ट नाइट, मीन्स यस्टरडे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इवन आपके लाइफ के सिली क्वेश्चंस के भी जवाब चाहिए, सब कुछ जानना है उन्हें आपके बारे में। तो आप वैसे लोग को क्या करोगे, इग्नोर करोगे। तो इग्नोर करने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि चुपचाप वो बोलते जाएंगे और आप जवाब नहीं दोगे। सो यू रिप्लाई विथ नन ऑफ योर बिजनेस, तुम्हारे मतलब का नहीं है, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में थोड़ा कोई भी बात जो है ना लग जाती है, तो इंग्लिश में बोलो, मे भी समझ में भी ना आए सामने वाले को। और ज़रूरी नहीं है, आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता वैसे फालतू लोगों के लिए जो आपके पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो इतने लंबे सेंटेंस में नन ऑफ योर बिजनेस बोलने से अच्छा यू जस्ट रिप्लाई देम विथ NOYB। या तो शर्म से पूछेंगे नहीं अगर मतलब पता होगा तो, या फिर अगर मतलब नहीं पता होगा तो एम्बैरेसमेंट से नहीं पूछेंगे, कहीं सामने वाले को ये ना पता चल जाए कि मुझे उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता। सो इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू टू जस्ट इग्नोर देम, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, WTH, सिमिलर टू दिस वर्ड एंड वन ऑफ माई फेवरेट टू, व्हाट द हेल विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन है जो लोग देते हैं जब क्या होता है, जब काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, जब काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट होता है या फिर इरिटेशन, जब किसी बात से चिढ़ होने लगती है ना, या कोई चीज़ को देख करके इरिटेशन होने लगता है, कोई चीज़ को देख के बहुत डिसअपॉइंटमेंट होने लगती है, तो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, व्हाट द हेल। सपोज आपने कुछ वर्क्स अपने टेबल पे ऑर्गेनाइज करके रखा है, या कुछ अपने टेबल को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा है, एंड सडनली वन ऑफ योर नेबर्स चाइल्ड कम टू योर होम, और वो पूरी तरह से उसे बिखरा के रख दे, अस्त व्यस्त कर दे। तो व्हाट विल यू जस्ट रिप्लाई टू देम आफ्टर सीइंग दैट, व्हाट द हेल, क्या बोलोगे आप, व्हाट द हेल। तो ज़रूरी नहीं है ना अब उसके सामने व्हाट द हेल बोल दोगे आप, तो उसे समझ में भी तो आ जाएगा अगर वो थोड़ा बड़ा बच्चा होगा तो। और अगर उसे नहीं भी समझ में आएगी तो वो उस फुल फॉर्म को याद रख लेगा और घर जाके अपनी मम्मी को बताएगा, मे बी शी नोज दैट। तो थोड़ा सा रिलेशन क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा एक दूसरे से। तो अगर आपको बुरा भी लगा तो यू कैन जस्ट यूज अ शॉर्ट एक्रोनिम WTH। व्हाट विल से, WTH। ना बच्चे को समझ में आएगा और उन्हें तो समझ में नहीं आएगा अगर बच्चे को याद ही नहीं रहेगा तो। सेम थिंग हैपन्स जब भी आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट हो या इरिटेशन हो तो आप ये वर्ड यूज़ करते हो, एक्रोनिम, दैट इज WTH, विच स्टैंड्स फॉर व्हाट द हेल। सो this was the last word for today's session. In the next class I will try to come with some more words related to some kind of studies or some kind of jobs
जिसके एक्रोनिम्स मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ये कॉमन यूज्ड एक्रोनिम्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस किया, जो आप विद इन टेक्स्ट में कन्वर्सेशन में यूज़ करते हो। तो just go through these words and even the previous class words. But before that, don't forget to like and subscribe my channel if you liked it, and don't stop showering your love on me. Thank you and have a nice day.